चलिए हमने स्क्रीन शेयर किया। आज हम लोग टुडे विल लर्न अबाउट two features of astrophotography. One is the star trail and second is the Milky Way. ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, लेकिन आपको हम सिखाएंगे बहुत सरल तरीके से ताकि आसानी से आप डाइजेस्ट कर सकें। एक मिनट लगा दें। Yes, the top one is the star trail and down below is the Milky Way. दोनों के लिए जो कॉमन चीज है वो है कि सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। लोकेशन to be such which is a dust free and pollution free. For a star trail, foreground is very important. Simply if you capture movement of a star, then it doesn't have carry much meaning or doesn't have the story behind this. So you must select a very good foreground. Then you must have a compass to locate north star or north direction, because the center point of north star relative to earth, it does not rotate, so that will be stationary, and around that you will get a circular movement of other stars. Then additionally you can carry a tent to create a beautiful background by giving some light within the tent. Why car is required? Because with the car headlight you can put the light on something in the foreground, and the speed light is also very important. Then time period for a star trail, best day is the new moon day, that is the Amavasya, or 3 or 4 days or about 7 days and before and after new moon. The reason is very simple, because the sky is very dark. There is no light of the moon, so you can get the clear-cut movement of stars. Then what equipment is required? Tripod must be very stable, and tripod, if it is with a ball head, it is much convenient to frame and focus. DSLR, it may be any DSLR, Apex or CS, doesn't matter, which has got the feature of time interval shooting. If it is not there, then you can carry external timer like MC36, which I will show you afterwards. Compass or mobile app. Uh, Mobile app is not very reliable, because in case you are uh, located at a location where there is a electric line passing through, then mobile app will fail to work. This I have experienced. So better to carry a manual compass, which is much preferred. Then wide angle lens is preferred here, because you can take the wide spectrum of the star field, like 1635, 1424, 11, 16, like that. साथ में एक टॉर्च होना बहुत जरूरी है। टॉर्च होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप रात में काम करेंगे, कहीं आपको कुछ ढूंढना हुआ, लोकेट करना हुआ, तो अगर मोबाइल के लाइट से आप काम चलाना चाहेंगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, कभी आपके पैर से ट्राइपॉड पे टक्कर हो जाएगा और आपका कैमरा लेंस पूरा नीचे चलना शुरू हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू कैरी ए टॉर्च, like this is a torch which I always carry in my camera bag.
Then first of all, let us talk about the camera setting. Focus mode should be manual. Shooting mode again manual. Image quality must be raw. If you shoot in JPEG, then processing of uh, data of one image and pasting it to the complete 100, 200, 250 images will not be possible. So here the shooting raw is very important. Color space, as you know, Adobe RGB. Picture control standard. White balance auto. I have given a asterisk which will be explained later in down below. Then ISO to start with, keep it at 800, and then you can maneuver depending upon the brightness of the dial shot. Shutter speed should be 30 seconds. This is a long exposure noise reduction should be made on. इसको ऑन करने से क्या होगा कि there will be a duplicate frame, because when long exposure noise reduction is made on, then the camera clicks one more frame with a black color. So in that case, your duration of shooting will increase. Your number of shots will be 50%. Then regarding white balance, which is as per my experience, I have noted here, for city life, it is better to keep custom white balance, that is 3400 to 3900 degree Kelvin. अगर sky बहुत dark है, then 400 Kelvin or maybe 400, 200, 500, like 4000 degree Kelvin or 4500 degree Kelvin. Then comes how to focus, because in darkness focusing is damn impossible. Okay. One way that before it becomes dark, you choose your location, set your camera on tripod, and do the focus and keep the focus in the manual. This is the one way out. Otherwise, what happens? Every lens has got a ring. In that ring, you will get a mark of infinity, because the sky is almost at infinity. So just I can say 0.5 millimeter below infinity, you keep the focusing ring, then take a trial shot. Okay, now before taking a trial shot, you have to set the exposure. Exposure one is very clear. Shutter speed will be 30 seconds. Aperture you keep say f8, because the more if you keep the aperture more than f8, then what will happen? You have to increase the ISO, and then you will end up with a lot of noise. So to start with, keep the f at 8, ISO 800. So now you have got all three parameters of exposure: shutter speed 30 seconds, f value 8, and ISO 800. And then you take a trial shot. After taking trial shot, you zoom it, and then you see whether star is a sharp or there is a line. If there is a line, it means it is not well focused. So again, go back to the focusing ring, and just a little bit left or right you keep it, and take 2-3 shots. You will come to a point where you are getting a sharp star. Am I clear here? This is the most important. बाकी तो कुछ भी नहीं है. This is the most important part of start your shooting. How to set your camera, how to set your exposure. फोकल लेंथ सर कितनी रखेंगे? फोकल लेंथ बताया ना, फोकल लेंथ तो अपने फ्रेम के हिसाब से जी है ना. अगर आप मान लिया कि यूजिंग है वाइड एंगल लेंस, तो 16-35 जो भी हो, फोकल लेंथ इज अप टू यू कि आप कितना फ्रेम चाहते हैं कवर करना. जी जी जी. आपका फोरग्राउंड कैसा है.
Okay. And your camera should be facing north direction, because in the north you'll get the north pole, north star. So the movement of the stars will be circular towards the north star. सर मैनुअल फोकस करेंगे और फोरग्राउंड को करेंगे, तो फिर उसको मैनुअली एडजस्ट करके इंफिनिटी के नीचे क्यों करेंगे? नहीं, अगर आप मान लिया कि शाम होने से पहले आप पहुंच गए, अंधेरे होने से पहले, तब तो आप फोरग्राउंड को फोकस करके कैमरा को स्टैंड पर रख के बैठ जाइए, ठीक है, और अंधेरा होने पे शूटिंग स्टार्ट, ठीक है। मान लिया आप लेट पहुंचे, अंधेरा हो गया, तब तो आप फोकस कहीं नहीं कर पाएंगे ना, अच्छा, है ना। कुड यू गेट मी? तो पूरा डार्क हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शाम को 7 साढ़े 7 बजे, तो सामने पूरा डार्क रहेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो कंट्रास्ट नहीं मिलेगा, तो फोकस होगा नहीं आपका। उसके लिए है कि आप फोकस रिंग पे इंफिनिटी से जस्ट 0.5 मिलीमीटर पहले फोकस रिंग को रख के एंड देन यू टेक ए ट्रायल शॉट। क्लियर हुआ विद्यादा? विद्यादा क्लियर हुआ? हाँ सर। फोरग्राउंड को फोकस करके अगर डे टाइम होगा तब तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर देर टाइम में तो खैर स्टार्ट जल नहीं मिलेगा। क्या होगा कि अंधेरा होने से पहले आप पहुंच गए तो फोरग्राउंड को फोकस करके कैमरा को ट्राइपॉड पर रख के स्टिल छोड़ दीजिए, उसको हिलाना नहीं है, ठीक है ना। इन्फिनिटी के थोड़ा सा पहले करके रखेंगे तो फोरग्राउंड और स्टार दोनों फोकस में आ जाएगा। एकदम आएगा। क्या होता है कि देखो, जो आपका फोरग्राउंड है डेफिनेटली थोड़ा दूर होगा, ठीक है ना, तो वहां पे अगर फोकस करोगे तो देखोगे आप कि आपका जो फोकस रिंग है ऑलमोस्ट इंफिनिटी के पास पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ सेकंड? हाँ जी, लेकिन मेरा वाला जो लेंस है ना उसमें इन्फिनिटी दिया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो उसको क्या करना है? अगर उस पर नहीं दिया हुआ है, कौन सा लेंस है? 24-70 24 सॉरी 24-105। ओके, अगर उसमें रिंग नहीं है तो सिंपली क्या है कि आप थोड़ा सा अंधेरा होने से पहले जाके फोरग्राउंड पे फोकस करके रखना, ठीक है। ओके जी, अब आप इंटरवल टाइमर शूटिंग, ये तो हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि सेटिंग कैसे होती है। ये स्टार्ट करके जो ये यहाँ पे है ड्यूरेशन क्या होगा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि मेरा शटर स्पीड 30 सेकेंड है, ठीक है ना, तो ये जो इंटरवल है यहाँ पे हम देंगे 30 प्लस मिनिमम 10%, यानी कि 35 सेकेंड। क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए भैया। देखो इसमें क्या है कि जो टाइम इंटरवल है, शुरू वाला स्लाइड जो था, हाँ, इंटरवल टाइमर पे गए जिसके कैमरे में है, इसमें नहीं है, उसके लिए अलग से में है। यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी पहले हम वो जान लें कि जिस कैमरे में इंटरवल टाइमर शूटिंग है उसमें कैसे सेटिंग है। तो पहला आ गया, इसमें दो चीज़ है, ये तो सब पता है आप लोगों को। यहाँ पे हम शूट करते हैं इंटरवल कितना होगा, ये इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि मेरा शटर स्पीड 30 सेकेंड है। अब 30 सेकेंड में जो फोटो शूट होगा, कैमरा को टाइम चाहिए उसको रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरी कार्ड, ठीक है, जो कि 4 से 5 सेकेंड देता है। तो यहाँ पे हमको रखना है 35 सेकेंड। क्लियर हुआ? हाँ, स्टार्ट टाइम पे सर 35 सेकंड रखेंगे। स्टार्ट टाइम नहीं, स्टार्ट टाइम का मतलब हुआ कि आपको तुरंत स्टार्ट करना है या आधे घंटे बाद स्टार्ट करना है या 2 दिन बाद स्टार्ट करना है, जी जी, वो नहीं। ये जो इंटरवल है कि कितने देर के बाद दूसरा क्लिक होगा, क्योंकि जी, क्या जी। होगा कि हम एक और ग्राफ दिखाएंगे आगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ही पर देख लो आप। तो यहाँ 35 सेकेंड रखेंगे एंड देन कितना नंबर ऑफ शॉट चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए मल्टीप्लाइड बाई हमेशा 1 रहेगा, वरना क्या होगा कि उसी इंटरवल में 2 फोटोग्राफ लेगा
जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है हमारे काम के लिए, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ सर, पे आप कम से कम 100 रखिए। मिनिमम 100 पे एक अच्छा स्टार टेल बनता है। जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया फॉर्म लाइन बनेगा स्टार मूवमेंट का। तो 100 to 250 यू कैन, ठीक है। 100 कहाँ पे सर रखेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा था। ये जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है ना, जी, number जहाँ of- पे 0001 लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे 100 होगा या 200 या 250, जो भी आपका टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन इंटरवल 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 इनटू शॉर्ट्स। हाँ, तो शॉर्ट तो एक ही रहेगा। जी ये शॉर्ट का जो 1 फिगर है हमेशा 1 रहेगा, सिर्फ जी यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल चेंज होगा, ठीक है। जी तो यहाँ पे 100 to 250 रखना ठीक रहेगा। जी जी बिल्कुल। अगर जिस कैमरे में नहीं है इंटरवल टाइमर शूटिंग का, देन यू हैव टू गो फॉर एक्सटर्नल टाइमर इंटरवलोमीटर। इसका जो एक ग्राफ है ये आप समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो डिले लिखा हुआ है, दिस इज द स्टार्टिंग टाइम, कितने देर के बाद में स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में पहला शॉट, यानी कि दिस ड्यूरेशन इज एक्सपोजर टाइम। इज इट क्लियर? आप लोग गौर से देखो इसको, ये हुआ एक्सपोजर टाइम, जो कि हमारे केस में अभी 30 सेकेंड है, ठीक है। और ये पूरा हो गया इंटरवल। इंटरवल का मतलब हो गया एक्सपोजर टाइम प्लस द टाइम फॉर राइटिंग ऑन द मेमोरी कार्ड। So this 30 plus 5 seconds, that's why I have told you interval should be 35. क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। हाँ, अभी जी से सर, आपसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जी जी एंड देन नंबर ऑफ शॉट्स को आप कर लीजिए। अब क्या है, ये तो हो गया आपका पहला पार्ट कि आपने 50, 100, 200, 300 जितना आपकी इच्छा है उतना आपने फोटो खींच लिया। ये अभी पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या है कि इसको बैच प्रोसेस करना पड़ेगा टू करेक्ट एक्सपोजर, वाइट बैलेंस एटसेट्रा, एंड देन सिंक्रोनाइज ऑल द इमेजेस। वो भी हम करके दिखाएंगे आपको। तो इसमें क्या हो जाए, मान लीजिए कि आपने 100 फोटोग्राफ खींचा, तो उसको आप उठा के डाल दीजिएगा फोटोशॉप। फिर पहला इमेज को क्लिक करके उसमें जो भी एडजस्टमेंट करना है, या तो वाइट बैलेंस का, एक्सपोजर कम अधिक करने का, कंट्रास्ट का, सैचुरेशन का, जो भी करना है एक में करके उसको फिर कॉपी करते हैं। हम बताएंगे कैसे करते हैं दिखा के। और फिर बाकी पूरे इमेज को सिलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो हम पहले इमेज पे हमने एडजस्टमेंट किया है वो सारे इमेज पे आ जाएगा। इसके बाद उसको हम एज जेपीईजी सेव कर देंगे। एम आई क्लियर? जी क्लियर हुआ? सर। जी सर। बोलिए बोलिए, कहीं दिक्कत हो बोलो आप। अभी लेकिन और थोड़ा- क्लियर होगा जब हम एक्चुअल दिखाएंगे, हाँ जी, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये दूसरा स्टेज हो गया, आपको एक्सपोजर और कलर को सही करना। सारे इमेज एक इमेज में करके बाकी इमेज में उसको पेस्ट करके या सिंक्रोनाइज करके। हर लाइव रूम में अलग फीचर है, हम दिखाएंगे आपको फोटोशॉप का, ठीक है। तो बाकी में पेस्ट करके और पेस्ट करने के बाद में आपको सारा 100 इमेज यूनिफॉर्म एक्सपोजर का बन जाएगा, ठीक है ना। थर्ड स्टेज में जो हमने पहले लिंक दिया था स्टार्ट एस्टेस का, ठीक है, उसमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सारे जेपेग फॉर्म में जो 100 इमेज बना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और वो अपने आप ड्रामा शुरू करेगा। एक एक स्टार को जोड़ते 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 एक कर्व बना देगा, ठीक है। उसके बाद उसको सेव एज करके और फिर फोटोशॉप में उसको इनहेंस करना है। अभी एग्जाम्पल देखिए, ये हम दिखाए इसीलिए कि हमारे यहाँ धनबाद में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसा हमने पहले कहा है कि स्काई शुड बी डार्क, है ना, तब जाके ऐसा स्टार टेल आएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो यार, जहाँ रोशनी है वहाँ करो। तो पाइथन में क्या है कि पीछे में पावर प्लांट है, तो वहाँ की रोशनी आती है।
ठीक है। तो हमने लाइट पोल्यूशन में ट्राई किया एंड आई गॉट ए सक्सेस। इसका मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट पोल्यूशन में भी आप स्टार सेल पाने में कामयाब होंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ बाएं तरफ है, यहाँ पे आपका नॉर्थ स्टार, तो क्योंकि वहाँ पे ये हम बिकॉज ऑफ फोरग्राउंड हमको और लेफ्ट में करना संभव नहीं था, तो हमने उसको छोड़ के बाकी हमने ले लिया। बट स्टार सेल कैन नॉट ओनली बी कैप्चर्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन, यू कैन डू इट इन एनी डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन का मजा अलग है। अगर आप कैमरे को वेस्टर्न साइड में फेस करेंगे, सॉरी वेस्टर्न में नहीं, ईस्टर्न साइड में फेस करेंगे तो मजा अलग आएगा। उसमें क्या होगा कि ऐसे ऐसे बनेगा, ओके। ये जहाँ पे एंड कर रहा है तो इसके बाद में वो ऐसे रिवर्स रिंग बनेगा। तो यू कैन ट्राई, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक बार में आपको एक ही तरह का फोटो मिलेगा, बार बार करना पड़ेगा। दिस इज माई आइडियल स्टार सेल जो हमने मुंशियारी में किया था। दिस इज ए पंचचुली पिक, और इसमें ज़्यादा भी नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से 200 इमेजेस था। यू कैन सी द क्लैरिटी बिकॉज देयर इज नो पोल्यूशन इन द स्काई, क्लैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ स्टार्स। ये हमने 2016 में किया। Then this is was done in Pushkar. Again in Pushkar, ये जो मेन रोड है अजमेर टू पुष्कर का, इसी के मेन रोड से हार्डली 50 से 100 फीट की दूरी पे लोकेशन हमने चूज किया था। तो वो जो रोड का स्ट्रीट लाइट है वो बीच पे हल्का गिर रहा था, ये हमको हेल्प किया। ये जो लाइट पोल्यूशन है रोड के स्ट्रीट लाइट का, वो हमको हेल्प किया टू गेट ए राइट फोरग्राउंड, और दिस इज द लोकेशन ऑफ नॉर्थ स्टार। अनदर के आने से पहले आपको हम स्टार सेल का मेरा फोटोशॉप, मिल्की वे के लिए भी सर वही सेटिंग रहेगी जो स्टार? बाद में मिल्की वे बाद में, पहले स्टार सेल का पूरा समझ लो आप, ठीक है ना। सर ये जो आपकी पिक्चर थी जिसमें आपने खींचा है राजस्थान में, जो इसमें कितने शॉट्स रहे होंगे? देखो अभी तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन किसी में भी 150 से कम नहीं है। जी सर। जो मुंशियारी वाला है जो बहुत फेमस है वो 250 है, और बाकी सब में 150 के आसपास है। जी सर। अभी आपको हम जो डेमो करेंगे इसमें मेरे ख्याल से 100 से भी कम है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 41 इमेज को लेके हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम अगर 150-250 लेंगे तो फिर 2 घंटा इसमें लग जाएगा, ओके। तो ये हमारा फोटोशॉप है, ये हमारा शूट किया हुआ इमेज है, ओके। सारे इमेज को सिलेक्ट किया, बहुत सिंपल है एकदम सिंपल। टाइम लगेगा, रॉ फाइल है ना। सारे इमेज एक एक करके खुल रहे हैं आपको कैमरा रॉ में, ठीक है, कैमरा रॉ कन्वर्टर। अब हम ये पहला इमेज लिए है ना, बहुत डार्क है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इसका हम एडिटिंग करेंगे, पहले हम इसका एक्सपोजर बढ़ाएंगे। स्टार दिखना शुरू हुआ, अब हम जाएंगे वाइट बैलेंस में, और में क्या होता है एस शूट भी ठीक है ना, या ऑटो भी ठीक है। अब ये अब देख रहे हैं कि जो मेरा फोरग्राउंड है उतना क्लियर नहीं, तो क्या करेंगे, थोड़ा क्लियरिटी को बढ़ाएंगे।
फोरग्राउंड क्लियर हुआ। थोड़ा सा हाईलाइट को कम करेंगे क्योंकि जो साइड में लाइट है वो सब जाए, उधर को और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मेरा स्टार का जो कलर है वो व्हाइट होता है, तो हम थोड़ा व्हाइट को जब देखो आप स्टार और भी होने लगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? यस सर। ये डार्क किए तो व्हाइट को बढ़ाए, स्टार और दिखना शुरू हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना एडजस्टमेंट काफी है। शार्पनेस सर और बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरा नॉइज भर जाएगा। जी सर। वो सब बाद में, जो लास्ट में एडिटिंग करोगे आप तब करता है, यहाँ शार्पनेस नहीं बढ़ा। यहाँ नहीं, शार्पनेस और क्लियरिटी दोनों नहीं बढ़ाएंगे? क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ाया है ना, हल्का सा क्लियरिटी बढ़ाया है हल्का। सर स्किन को फुल स्किन कर दीजिए ना, हाँ फुल स्किन कर दीजिए ना, फुल स्किन। क्या चीज? आपका स्किन का फुल स्किन कर दीजिए ना। ये तो जो रॉ कन्वर्टर इतना ही बड़ा दिखेगा, है ना। एनीवे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। खाली प्रोसेस देखिए। इसके बाद हम यहाँ जो 3 डॉट है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी एडिट सेटिंग। ओके, कॉपी माने हमको जो हम एडिट किए हैं पहला इमेज का, इसका जो सेटिंग है उसकी हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करके सारे इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो है ही सिलेक्ट, लास्ट में लाके शिफ्ट दबा के क्लिक कर लेंगे। ये सारा इमेज को सिलेक्ट कैसे किए सर? शिफ्ट दबा के देखो, बता दिए। अभी एक को सिलेक्ट किए, अब ये पहला में आ गए। यहाँ पे माउस का बटन रख के, पॉइंटर रख के शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कर दें, पूरा सिलेक्ट हो गया। जी। ठीक है, और फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ करेंगे पेस्ट एडिट सेटिंग। इतना सिंपल है, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पहले एडिट सेटिंग ऑफ वन इमेज, देन सेलेक्ट ऑल इमेजेस एंड देन पेस्ट एडिट सेटिंग। अब देखो आप, सारा इमेज एक तरह से हो गया, सारा इमेज सेम एक्सपोजर का। जी सर, जी सर। कितना सिंपल है, एकदम एक कप चाय पीने जैसा सिंपल है ये। हो गया। अब इसके बाद में फिर यहाँ जाके इसको हम करेंगे सेव इमेज, सेव इमेज एज जेपीजी। क्लियर? पीएनजी नहीं करना है, एज जेपीजी क्लिक कर कहाँ पे सेव करेंगे सर? सेव कहाँ करेंगे? जी सर। खाली इसको क्लिक करो आप, अभी बता देंगे सेव कहाँ हो रहा है। ठीक है ना, जी। जहाँ से फोटो लिया गया है वही सेव होगा। देख रहे हो यहाँ पे हो रहा है ना सेव। हाँ सर, वो चेंज हो गई, सारी इमेजेस चेंज हो रही है। एक रॉ है, एक जेपीजी है। आ रहा है सब उसी फोल्डर में आएगा जहाँ से हमने रॉ फाइल को लिया था। यस सर। इसलिए हमने 41 इमेज दिया है ताकि कम समय में आपको हम डिमोन्स्ट्रेट कर। तो कोड क्लियर हो रहा है फारूक जी? हाँ सर, क्लियर है सर।
দীপান্বিতা তুমি কোথায়? Yes, sir. Are you here? हाँ sir. Is it clear to you? हाँ sir. कहीं भी डाउट होने से फील फ्री टू आस्क। जितना आप लोग पूछेंगे उतना आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो हमको ये बैठ के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है बहुत सिंपल। डेफिनेटली पहली बार में ये कॉम्प्लिकेटेड इशू लगेगा, जो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन आप हिम्मत करके जब शुरू करोगे आप तो एक दो बार करोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सर 50 mm यूज कर सकते हैं लेंस? You can use any lens depending upon your frame. जी सर। You can use any lens. But again 50 millimeter अगर 1.8 है या 1.4 है तो जी। उस 1.4 1.8 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? जी सर। क्योंकि हम तो f रखेंगे 8, तो चाहे वो लेंस 18105 हो या 2470 2.8 हो या 50 मिलीमीटर 1.4 हो, सब बराबर। डेफिनेटली जो 50 मिलीमीटर 1.4 लेंस है उसका ऑप्टिक्स ज़्यादा अच्छा है, तो जो स्टार का फॉर्मेशन ज़्यादा शार्प होगा, तो मत करिए। बट नॉर्मली वी शुड यूज वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल में बड़ा फ्रेम आएगा तो ज़्यादा स्टार्स का बड़ा शेप दिखेगा। हमने जितना स्टार टेल दिखाया है आपको अभी, सारा हमने 1635 से लिया है। सर मेरा कैनन में 1855 है, उससे होगा सर? हाँ, क्यों नहीं होगा, एकदम बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो सारा आ गया। अब यहाँ पे एक हम बनाएंगे जेपीजी फोल्डर। और यहाँ पे करेंगे शॉर्ट बाई साइज। शॉर्ट बाई साइज, ठीक है। ऊपर सारा जेपेग आ गया, सारा जेपेग को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप इन द जेपेग फोल्डर, तो हमारा सारा फाइल प्रोसेस होके यहाँ पे जेपेग आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम बंद करेंगे, डन। देंगे। अब हम खोलेंगे स्टार स्टैक्स। ये स्टार स्टैक्स, ठीक है। ये हमने स्टार स्टैक्स को ओपन कर रहे हैं, खुल गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ड्रॉप इमेजेस हियर। तो ये जितना जेपेग इमेज है सेलेक्ट किया सारा करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ओके, इमेज सब आ गया। अब यहाँ जाके हमको एडिट में जाके स्टार्ट प्रोसेसिंग। उसके पहले आप प्रेफरेंसेज में देख लीजिए क्या क्या आप सेटिंग कर सकते हैं। ये आ गया डिफरेंट सेटिंग। ब्लेंडिंग
यहाँ से you can change the blending mode. Gap filling is better. अब ये है सेटिंग करने का सेट करना है, बैकग्राउंड स्टार्ट करना है, बैकग्राउंड ठीक है, ये करके सिंपली गो एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग। अब देखो आप खेला, फिल्म शुरू होता है अब। गड़बड़ हो गया, दोबारा स्टार्ट कोई ना करेगा। तो फ्री के माल में ऐसे ही होता है। स्टार्ट करते हैं। मजा आ रहा है सबको? ऐसा गजब। हाँ मजा आ रहा है ना? कितना सिंपल है, एज सिंपल एज ए कप ऑफ टी। तो जादू हो रहा है। यस सर। अभी देखो, अभी तो बाकी है। ये तो 41 इमेज है। अब सोचो अगर आप 150-250 इमेज होगा तो कितना मजा आएगा। हो गया? डेंसिटी बढ़ जाएगी। हो गया। अब यहाँ से जाके सेव एज, सेव एज हम जहाँ पे किए थे वहीं जाएंगे पहले। यहाँ इफेक्ट था और यहाँ बनाने से हम फोल्डर और उसका नाम देते हैं स्टैक। ये हमने स्टैकिंग किया। ठीक है, इस फोल्डर में हमने इसको सेव किया। गया। अब हम वहां जाएंगे जहाँ पे हमने इसको सेव किया है। ये रहा स्टैक। ये हमारा फोटो स्टैकिंग होके आया है। मजा आ गया? यस सर। अब इस पर जो भी आपको तलवार चलाना है फोटोशॉप में, आप तलवार चलाइए। ये रहा फोटोशॉप और ये तलवारबाजी कीजिए आप लोग। जो करना है, भाग तेज करना है, शाइन करना है, पॉलिश करना है, सब कीजिए लेकिन हिसाब से। ओके, ये आ गया। उसी काम करने से पहले एक लेयर बनाना जरूरी होता है ताकि गलती हो जाए तो उसको सुधार सको। एक लेयर बना। अभी क्या है, हमको थोड़ा इसमें कंट्रास्ट लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई बताएगा? इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, शैडो हाइलाइट्स में गए, कुछ पहले ये था, अभी ये फर्क आया? यस सर। मजा आ गया? यस सर।
सर इसका फोरग्राउंड देख के लग रहा है कि दिन का समय है। दिन का अभी क्या है कि जब हम लॉन्ग एक्सपोजर देते हैं ना, तो स्काई डार्क होने से भी वो दिख जाता है ब्राइट। ये पहले था, ये स्टैक किया हुआ है, ये फाइनल। ठीक है, अभी इसमें आप जो भी चाहें और भी जो इच्छा हो जितना इसको पॉलिश करना है पॉलिश कीजिए आप, बट दिस इज रेडी नाउ। सेव एज। सर फोरग्राउंड तो नहीं भी रख सकते हैं, डायरेक्ट स्काई ले सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि आप उसको क्यों खींचेंगे भाई। ट्रेन विदाउट पायलट इज ऑफ नो यूज। फोरग्राउंड जरूरी है ना, फ्रेमिंग कैसे होगा बढ़िया अगर अच्छा, फोरग्राउंड नहीं हो। सीखने के लिए ठीक है, बिना फोरग्राउंड का चलेगा, लेकिन जहाँ तक एक परफेक्शन की बात है, क्वालिटी की बात है, उसके लिए फोरग्राउंड जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम आपको स्टार ट्रेल का इमेज पहाड़ी एरिया में मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको स्नो पिक मिलेगा, माउंटेन मिलेगा। अगर यहीं पे थोड़ा सा वाटर बॉडी हो तो पानी में रिफ्लेक्शन भी आएगा स्टार ट्रेल का, तो और भी मजा आएगा। ठीक है ना, सेव एज कर दिए। ये फोरग्राउंड को थोड़ा सा नाइट के हिसाब से सर उसको डार्क कर सकते हैं अलग से। देखो, हम कह रहे हैं कि आपके ऊपर में है। Yes. बहुत लोग क्या है, आप बहुतों का देखोगे स्टार ट्रेल तो वो बैकग्राउंड पूरा ब्लू दिखाई पड़ता है, विच इज अननेचुरल। दिस इज द नेचुरल। जी सर। ठीक है, बट अगेन इसको डार्क करना है, आप डार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेयर किया और यहाँ से गया हमने इलेक्ट्रिक कलर में गए, ये तो आपके हाथ में। ठीक है ना, इतना डार्क हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। जी सर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट जहां तक मेरी बात है, दिस इज नेचुरल, मोर नेचुरल देन जी सर। जी दिस वन। ओके, जी सर। हो गया, इसको बंद करें। Yes, sir. कोई डाउट किसी को हो तो पूछे। नहीं, अब करने के बाद पता चलेगा हम लोग। नहीं, अभी भी कहीं प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, खींचने पे अब कितना समय। प्रोसेस में दिक्कत नहीं है सर, लेकिन वो 30 फ्रेम रेट कहाँ सेट किए, वो एकदम शुरू में उसको हाँ, थोड़ा वही मुंह से ही बोल दीजिए। समझा दीजिए ना भैया, वो तो 30 वो कैसे- फ्रेम रेट 30 फ्रेम मतलब नहीं समझे। नहीं, पर 30 सेकंड, 30 पर सेकंड बोले ना, टाइमिंग टाइम इंटर 30 सेकेंड जो कैमरा का शटर स्पीड है वो वो 30 सेकेंड पे रहेगा। सर हाँ, कैमरे में दिखा के थोड़ा सा सेटिंग बता देंगे सर। आप कैमरा ले, कोई लेके बैठा है वहां पे अपना, नहीं, वो ले लेते हैं, कैमरा ले लेते हैं। लेके बैठो आप। शटर स्पीड देखो कितना आ रहा है मैक्सिमम। 810 में 810p में 15 मिनट है, लेकिन बाकी में 30 सेकेंड मैक्सिमम है। इसके बाद बल्ब मोड आएगा। जी सर।
क्लियर है? 30 सेकेंड, नॉट 1/30 सेकेंड, याद रखिएगा आप लोग। 30 सेकेंड, नॉट 1/30 सेकेंड। दुकान तो देखो, आप कैमरा को मैनुअल में करो, शटर स्पीड को चेंज करो। थर्टी कर दिए सर। 30 है ना? हाँ शटर स्पीड यहाँ रखना है, एपर्चर करो 8, हाँ 8 कर दिए। और ISO कर दो 800। ठीक है, अच्छा। ये बेसिक सेटअप है कैमरे का। अब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्काई ब्राइटनेस, आपको ISO कम भी कर सकते हो, ISO बढ़ाना भी पड़ सकता है। बहुत डार्क स्काई है तो मे बी कि 800 के जगह पे 1200 या 1600 ISO करना पड़ेगा। बट स्टार्ट विथ द फर्स्ट शूट, दिस इज द स्टैंडर्ड सेटअप ऑफ द कैमरा। क्लियर? नहीं, इंटरवल टाइमर शूटिंग का ऑप्शन में गए, हाँ ठीक ऊपर है, में वहां जाओ आप। हाँ उसके बाद स्टार्ट ऑप्शन, उसके बाद इंटरवल, हाँ, उससे भी नीचे जाना है। आप देखो यहाँ पे आ गए, हाँ पहले नाउ क्लिक करो आप। अच्छा, स्टार्ट ये पहले बता चुके हैं हम, नहीं तो पहले क्लास में बताए थे। नाउ को क्लिक करो आप। स्टार्ट ऑप्शन नाउ, हाँ नाउ क्लिक किए। हाँ, एक मिनट हम भी अपने कैमरे में खोल लें ताकि आपको बताने में आसानी हो। ठीक है, नाउ को ओके किए। नाउ को ओके किए। अब देखो, आप जो ये बटन है, इसको इसको दाहिने तरफ प्रेस करो आप। दाहिने प्रेस किए, हाँ इंटरवल आया, हाँ इंटरवल आया तो। हाँ। अब यहाँ पे जो आवर मिनट सेकंड है, यहाँ जी। पे बाकी 0 रख के सेकंड में 35 सेकंड करना है। ओ अच्छा अच्छा, यहीं पर करना है ना। ठीक है, वही। उसी को आप राइट राइट क्लिक करोगे आप तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आवर से जाएगा मिनट में, मिनट से जाएगा सेकंड में। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ 30 सेकंड करो, 35 कर दिए। आप 35 कर दो। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। फिर राइट क्लिक करो आप, फिर आएगा आपका सिलेक्ट नंबर ऑफ, हाँ यस, ठीक है, सिलेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हाँ आ गया। अब यहाँ पे आप 100 कर दो या 200 कर दो। अच्छा। ठीक है, इसके बाद जो नंबर ऑफ शॉट्स है उसको 1 कर दो आप, हम्म है ना? हम्म अब देखो वहां पे 100 आएगा। ठीक है, हम्म फिर राइट क्लिक करा के फिर आएगा ऑन ऑफ। ठीक है, फिर ऊपर जाके ऑन को दबा दो, ऑन को दबा दो तो फिर चालू हो जाएगा, अपने आप ये शूटिंग करना शुरू करें। क्लियर हुआ? नहीं भैया, इस 750 में नहीं पता चल रहा है। इंटरवल टाइमर शूटिंग में आए, हाँ, उसके बाद है स्टार्ट ऑप्शन। स्टार्ट के ऊपर में 9 है। नहीं, इंटरवल टाइमर शूटिंग सीधे आ रहा है स्टार्ट, उसके हाँ। बाद स्टार्ट ऑप्शन, उसके बाद इंटरवल, उसके बाद नंबर ऑफ इंटरवल शॉर्ट्स ठीक है एंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो इंटरवल है वहां पे जाके आप करो 35 सेकेंड। 35 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में। उसके बाद क्या है,
नंबर ऑफ शॉट्स है 35 करने दीजिए पहले भैया। हाँ हाँ तो मिडिल में 35 करना है ना? हाँ हाँ मिडिल में नहीं, मिनट है, मिडिल में मिनट है, 35 सेकंड करना है। इसमें 3 फिगर है, पहला 00 घंटा है, दूसरा 00 मिनट है, तीसरा 00 सेकंड है। सेकंड को 35 करना है। ओ अच्छा अच्छा, हम तो मिनट में कर दिए थे। 3 मिनट में मैं भी कर रहा तब तो दिन भर बैठे रह जाते हैं। चली जाती, ट्रेन चली जाती। हो गया 35 हो गया। हो गया? हाँ सर। ओके कर दिए। कर दो 100। को ओके कर देना। हाँ ओके करके फिर आगे आएगा नंबर ऑफ शॉट, उसको 100 कर दो। हाँ 100 की। इंटरवल शॉट्स, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स एक ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। उसके बाद इनटू भी एक। नहीं 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 नहीं, इंटू एक रहेगा, उसके बाएं तरफ में 100 या 200 रहेगा। हाँ तो गुना करेंगे तो वही आएगा ना 200 से। अरे उसमें यार 2 फिगर है ना, हाँ, पहला वाला 200 होगा, दूसरा वाला 1 होगा, उसके बाद फिर 200 हो गया, अपने आप हो गया। अब 200 हो जाएगा ना, 200 इंटू 1 इज 200, ठीक है, हो गया। उसके बाद में स्टार्ट कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी ओके कर दिए। उसके बाद सीधा स्टार्ट में जाके स्टार्ट कर देना है ना। क्या बात है, तभी मत करिएगा कोई, नहीं तो बैठे रह जाइएगा। हम तो भूल से एक बार कर भी दिए। मजा आ गया। आ गया जी, भैया, जी। आ गया, पूरा मजा हाँ। आ गया। आ गया। अब क्या है, ये आसमान खाली हम लोग खुली और बहुत है। 5 मिनट का ब्रेक ले, 5 मिनट का, हाँ 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 बिल्कुल। है ना, जी, थोड़ा जी। 5 मिनट का ब्रेक ले। हाँ। अब तो खजाना सिखा दिए हम लोग को। ये स्टार्ट इसके बाद कर देंगे सर फाइनली। अरे सुनो, आप लोग सुन लो पहले। सर। ये हमें सीखने में कई महीने लग गए। हमने कितने YouTube वीडियो देखा, हमने कितने आर्टिकल पढ़ा, लेकिन फिर भी फंडा क्लियर नहीं हुआ था। तो जो हमने शूट किया तो फंडा क्लियर हुआ। इस पर मेरा जो चीज मैगजीन है, उसके लिए हमने फोटो वेबिनार किया था अभी इस साल। इसके बाद पुष्कर में हम 3 वर्कशॉप कर चुके हैं इसी पर। तो अब जाके थोड़ा मास्टरी हो गया, थोड़ा सा सीख लिए, थोड़ा जान गए। सर यूट्यूब देखने में समझ में नहीं आता है। वो सब शॉर्टकट में बताता है वो लोग। शॉर्टकट नहीं, वो सब बुझा देगा आपको। एक तो देखिएगा, हाँ फिर हाँ, देखना पड़ेगा, फिर सही तीसरा सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। क्या देता है हम लोग। हम्म, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले ले, और क्या। हाँ हाँ हाँ। अभी लगा दें छत पे जाके क्या? ज्योतिर्मय को नशा हो गया है एकदम। हाँ सर। ठीक है। अभी लगाइएगा तो बारिश भी हो रही है। ये तो डर लगता है। अभी आपको क्लियर हुआ? जी जी जी, क्लियर हुआ? प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। होंगे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा। क्लियर हुआ? जी हाँ सर, एक बार ट्राई करके देखेंगे। सब ट्राई करना, आप बताइए कब ट्राई करना। हमने तो इसको फोन किया है, उसका कोई वजह है, ठीक है ना।
चलिए आफ्टर द ब्रेक कभी आ जाए वापस। टाइम कितनी देर सर रख सकते हैं, थोड़ा डाउट हो रहा है। कौन सा टाइम बताओ आप? कितनी देर शूट करेंगे सर? कितनी देर तक? आप गुना जी कर लो ना, 35 सेकेंड इंटू 200 कितना होता है? जी सर। बस सिंपल कैलकुलेशन है। ओके। मैंने आप रफली मान लो 2 से 2.5 घंटा आपको वहां पे रहना है। जी ठीक है। जी सर। और सुकांतो जो हमने कहा था कि फोरग्राउंड इज इम्पोर्टेंट। सुकांतो आर यू हियर? सुकांतो चलिए बाकी जो है वो सुने। फोरग्राउंड इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपके फ्रेम को देखने में मजा आए। अब ये देखिए आप फोरग्राउंड में आपको स्नो पीक माउंटेन तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं हो तो क्या मतलब है? क्या सुकांतो? जी जी सर। क्लियर हुआ ना, फोरग्राउंड तो इम्पोर्टेंट है। सर आपके पास वैसा कुछ है, कार या टेंट स्टार्टेल के सामने ऐसा कुछ पिक्चर है अभी? नहीं वो हमने नहीं लिया है अभी, है जी ना? जी ठीक। लेकिन हम दिखा देंगे बाद में कभी आप लोगों को। सर। किसी और का फोटो दिखा देंगे। सर। हाँ पूछिए। सर फोरग्राउंड में कोई बिल्डिंग वगैरह ले सकते हैं, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो जैसे लखनऊ में है? कोई चर्च हो वो चलेगा, ठीक है ना, इमाम बाड़ा भी चलेगा, एनीथिंग। ओके। हम पलामू किला में ट्राई करेंगे। मस्जिद होगा ना, मस्जिद पलामू जिला में मस्जिद तो है ना कि नहीं है मस्जिद? नहीं भैया, वो झूठ बोलता है सब। घाटगढ़ में मस्जिद नहीं है? डाल्टनगंज में है, पलामू किला में नहीं है। किला नहीं, गार्डनगंज जिला जिला। हम पलामू किला बोल रहे हैं। गार्डनगंज क्या पलामू जिला में नहीं है क्या? नहीं नहीं, सैकत किला सुन रहा था, पलामू किला वो कुछ नहीं है, टूट फूट के खत्म हो गया। कोई भी मॉन्यूमेंट ले लो आप, है ना। ये जो आपका है ना वो टावर मार्केट में क्या नाम है उसका, वो भी ले सकते हो आप। बट एनीवे अब आगे आप लोग ध्यान से सुनिए। मेन क्या है कि पहला चीज लाइट का पोल्यूशन नहीं हो, डस्ट का पोल्यूशन नहीं हो, ठीक है। सर। आप एक बार एक दिन पहले या उसी दिन जाके शाम को देखें आप तो आपको अगर स्काई क्लियर है, क्लाउड भी नहीं होना चाहिए। क्लाउड होगा तो आपको स्टार नहीं दिखेगा। लेकिन हम यहाँ पे एक बार बोलने जा रहे हैं कि अगला जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो है क्लाउडी वेदर में स्टार टेल लेना। क्या बात है। तो ये तभी हो पाएगा जबकि क्लाउड में मूवमेंट नहीं हो। अगर क्लाउड स्टेशनरी हो 1 घंटे के लिए तो स्टार टेल हो सकता है। तो वो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, करेंगे, ठीक है। अब हम आज जो क्लास को प्रीपोन किए
है ना, जो ये डे 5 में था उसको डे 3 में किए। इसका रीजन ये है कि 10 जून को अमावस्या था, न्यू मून था, ठीक है ना। आज जी। हो गया 15 तारीख, यानी कि 5 दिन निकल गया है। तो आपके पास अभी भी 2-3-4 दिन समय है ये शूट करने का। तो कल से ही आप लोगों को प्रयास करना है, जिसके भी एरिया में शाम को स्काई क्लियर मिले बिना क्लाउड का, जी। तो आप ये शूट कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए, इसीलिए हमने इसको प्रीपोन किया है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करने के लिए 50 फ्रेम ही कीजिए, कोई जरूरी नहीं। आपने देखा ना, अभी हमने 41 फ्रेम से आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ शॉट्स है उसको 50 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सीखिए, ठीक है ना। 50 के बाद में फिर अपना 250 या 300 कीजिएगा, गॉट इट। क्योंकि नंबर ऑफ शॉट्स कम रहेगा तो आपको संभालने में आसानी हो जाएगी। बट ऑलवेज इमेज क्वालिटी विल बी रॉ, ये कभी मत भूलिएगा। आप जेपेग में करेंगे तो सब कचरा हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये आप सभी को करना है एक एक। दूसरा चीज हमको यहाँ बोलना है कि जिन लोगों ने टाइम लैप्स नहीं किया है उनको और भी हम मौका दे रहे हैं, वो जरूर एक टाइम लैप्स करके दें। जो नहीं किए, कौन कौन नहीं किया है बताइए। हम सर। आपको करना है। जी तो सर। कितने आपने किया है? मैंने भी नहीं नहीं सर। किया सर। सर हमने किया। जो जो नहीं किए हैं जरूर कीजिए, ये बैकलॉग जी। है। हम भी नहीं किया। हाँ, तो जो नहीं किया है वो जरूर करे, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं। क्लास खत्म होने से पहले पूरा करके, पूरा देख के छोड़ेंगे। लेकिन सर स्टार्ट टेल मुश्किल हो जाएगा, इतना क्लाउड है, अभी बरसात का देखो, सीजन अब है। क्या है कि जो चीज नहीं है वो तो नहीं है ना। अब हम लोग भगवान तो नहीं बन सकते हैं ना, आप समझ रहे हो ना। जी अभी नहीं है तो बाद में करना। जब भी हम ये क्या बोल रहे हैं कि जिसको की स्काई क्लियर मिल जाए वो कर ले। नहीं मिलता है तो जब स्काई क्लियर मिलेगा तब करना। तब करने के बाद भी आप मेरे पास आ सकते हो। आपके लिए ये दरवाजा, सॉरी दरवाजा नहीं, आपके लिए ये मेरा जो सेशन है हमेशा खुला है। कोई भी जब भी करे, वी कैन डिस्कस विथ मी। बहुत लोग हैं जो व्हाट्सएप पे इमेज भेजते हैं, हम सलाह देते हैं, ये चलेगा। ये एक रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम आज हैं कल से ये क्लास खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे अरे स्टेटस कौन हम जानते ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो ध्यान रखिएगा। भैया नेतरहाट एक बार आइए ना, नेतरहाट में बहुत जबरदस्त बनेगा, एकदम पोल्यूशन नहीं है। आएंगे आएंगे आएंगे, थोड़ा कोरोना खत्म होने दो। सर अच्छा, वहीं जिसके शहर में घर से बाहर जाने का सुविधा नहीं है वो अपने छत के ऊपर भी कर सकता है। जहाँ तक सीखने के लिए बात है, अगर हल्का लाइट पोल्यूशन हो तो भी ट्राई कीजिए आप लोग। कुछ तो आएगा, जैसे हमने दिखाया माइथन का लाइट पोल्यूशन में किया हुआ, ऐसा तो आएगा ना। कम से कम आपको एक स्टार का मूवमेंट तो दिख जाएगा ना, ठीक है ना। कुछ तो अभी इस समय थोड़ा सा चंद्रमा दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है। अभी दिख रहा है हल्का सा। हाँ तो काफी लेट हो गया ना, 9 बज गया, 8:30 हो गया। जी। तो आप चंद्रमा दिख रहा है तो उसका डायरेक्शन होगा ईस्ट, आपको लेना है नॉर्थ में। जिस डायरेक्शन में मून नहीं हो वहां लो आप। इसमें चंद्रमा देख लिए ज्योतिर्मय जी? हाँ सर, अभी अभी गए थे, देखा है छत पे। ओ अच्छा है ना। अच्छा। तो जिस डायरेक्शन में मून हो उस डायरेक्शन में मत खींचो आप, उसके अपोजिट में खींचो जहाँ पे कि डार्कनेस है। ठीक है। क्योंकि पहली बार आपको करना जरूरी है, तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। और नेवर गो फॉर मोर देन 50 नंबर ऑफ शॉट्स, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला बहुत आसान है। आप हैं तो सब आसान है। ये रहा मिल्की वे। जहां तक बात है स्टार ट्रेल का, दैट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे कई स्टेजेस है प्रोसेस करने का। नंबर ऑफ इमेजेस भी बहुत ज़्यादा होता है। मिल्की वे में सिंपल सिंगल इमेज होता है, एक इमेज होता है मिल्की वे का, ठीक है ना। तो आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये है मिल्की वे, ऐसा दिखता है रात में। जहाँ पोल्यूशन नहीं होगा वहीं दिखेगा, पोल्यूशन होगा तो नहीं दिखेगा।
ठीक है। ये मोबाइल डिवाइस हम बताएंगे ऐप क्या होता है इसका। एक ये चीज जान लीजिए आप कि व्हाइट बैलेंस इसका कोई फिक्स नहीं है नियम, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आप व्हाइट बैलेंस को 3200 से लेके 4800 डिग्री केल्विन रख सकते हैं, लेकिन हम रूल के लिए हम बताएंगे आपको 4400 डिग्री केल्विन इज द आइडियल, 4400 डिग्री केल्विन इज आइडियल हम रूल। इसके लिए ये जानने के लिए एक मोबाइल ऐप भी है जिसका नाम है स्टेलेरियम। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वो आपको रात का आप डेट दे देंगे कि हमको आज से 6 महीने बाद का इतने बजे का हमको स्काई दिखा दो, तो दिखा देगा आपको, ठीक है। तो स्टेलेरियम इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये जो मिल्की वे है ये मार्च एंड से लेके अक्टूबर तक ही दिखता है। प्रैक्टिकली हम मान लें इसको अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में दिखता है, और इट इज विजिबल इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इंडिया हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो वी कैन फाइंड मिल्की वे आइदर अर्ली मॉर्निंग आल्सो अराउंड 4 AM। कई बार मिल्की वे डिपेंडिंग अपॉन द मंथ, कई बार मिल्की वे रात के 8 बजे ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मंथ में मिल्की वे खींच रहे हैं। मिल्की वे दिखने का मंथ है अप्रैल टू अक्टूबर। ये आपका इंडिया यहाँ पे है, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका बस एकमात्र ये फार्मूला है मिल्की वे का। ये फार्मूला किस लिए है कि मेरा शटर स्पीड कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंगल शॉट है। स्टार टेल में हम लोगों ने शटर स्पीड रखा था 30 सेकेंड। यहाँ शटर स्पीड डिपेंड करेगा कि आपका फोकल लेंथ क्या है। इसका नाम है रूल का 500/600 रूल। To find ideal shutter speed to avoid fails। अगर ज़्यादा शटर स्पीड होगा तो क्या होगा, मिल्की वे में जो आपका स्टार्स दिख रहे हैं वो लाइन बन जाएगा, वो स्टार्स नहीं दिख रहा बल्कि एक लाइन बन जाएगा, एक टेल दिख जाएगा। इसीलिए ये रूल फॉलो करना पड़ता है, रूल 500/600। एनीवन यू कैन चूज, यू कैन लेट अस चूज 500, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि मेरा फोकल लेंथ है लेंस का 16 मिलीमीटर, तो 500 को डिवाइड करना है फोकल लेंथ से, विच विल कम अराउंड 31.25 सेकेंड, ठीक है। और अगर 600 में डिवाइड करेंगे तो 37.5। तो एनीवे वी कैन कीप शटर स्पीड इन बिटवीन 31 to 38 सेकेंड, लेकिन मेरे पास तो कैमरे में 30 सेकेंड है, तो हम 30 सेकेंड रख लें। 24 होगा तो 24, अगर ये फोकल लेंथ 24 मिलीमीटर होगा तो 500 में 24 से भाग देके देखो कितना आता है, करीबन 20 सेकेंड आएगा, उतना ही रखना होगा, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, सेटिंग ऑफ शटर स्पीड इज वेरी इम्पोर्टेंट, विच इज नथिंग बट 500 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब मान लिया 24-70 लगा लिया आपने शूट किया 70 मिलीमीटर के, तो 500 में 70 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करीबन 10-15 सेकेंड करीब रफली आएगा, तो फिर उतना ही रखना होगा। हाँ, जितना आएगा उतना ही रखना होगा, नहीं रखना होगा। जो क्या होगा कि एग्जैक्टली वो तो मिलेगा नहीं कैमरे में ना, कैमरे में जो उसके आसपास जो भी वैल्यू है वो रखना सकता है। क्लियर? ये 500 क्या है, 500 600 ये क्या ये है? रूल है, ये रूल है, ये रूल अच्छा, बनाया अच्छा। गया है ताकि आपको मिल्की वे में स्टार का लाइन नहीं बनेगा। जैसे कि आपने देखा पहले, शटर स्पीड इतनी रखेंगे सर जितना कैलकुलेट करके आएगा हाँ भाग देने पे।
वो नहीं करोगे आप तो क्या होगा, ये जो स्टार्स है ना दिख रहा है, यहाँ लाइन दिखेगा आपको, ये सब लाइन दिखेगा और ये जो मिल्की वे है ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए और वहाँ इंटरवल में हाँ इंटरवल में क्या रखेंगे? वहाँ एक ही एक शॉट तो लेना है, इंटरवल कहाँ से आ गया भैया, ज्योतिर्मय इंटरवल कहाँ से आ गया, एक ही शॉट होगा सर? एक ही शॉट होगा, वो बोल रहे हैं, एक ही फ्रेम बनेगा एक मिल्की वे का। ओके सर। इसमें 50, 100, 200 नहीं खींचना है, सिर्फ एक क्लिक, वन सिंगल क्लिक। जी ये जितना इमेज दिखा रहे हैं ये सारा सिंगल क्लिक है। अब क्या है कि टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल जी you can use this kind of torches, you can use human element, आप चाहें तो टेंट यूज कर सकते हैं, चाहें तो आप अपनी गाड़ी का जो हेडलाइट है वो जला के जो आदमी लोग खड़े हैं उनको आप ब्राइट कर सकते हैं, ये आपके क्रिएटिविटी पर है, ठीक है। आप इस तरह के बिल्डिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं मिल्की वे के लिए, ऐसा भी ले सकते हैं जहाँ पे कि वाटर बॉडी हो ताकि रिफ्लेक्शन आए, जैसे सकत के पास में कोयल नदी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? नहीं, हाँ, करके दिखाना। तो मिल्की वे का भी समय है, लेकिन चूंकि अभी रेनी सीजन आ गया है तो रेनी सीजन के बाद मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में कहीं मौका मिलेगा या सितंबर के आसपास मौका मिलेगा, जबकि स्काई क्लियर मिलेगा और आप लोग मिल्की वे भी ट्राई कीजिएगा। और ये जो भी एकांत एरिया है, मतलब कि शहर से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में आपको स्ट्रीट लाइट और बाकी जो फैक्ट्री का लाइट है वो तंग करेगा, तो शहर से दूर गांव में जाना पड़ेगा तो मिल्की वे दिखेगा। कौन सा ऐप था भैया डाउनलोड करना था? स्टेलेरियम, ये हम लिख के दे देंगे, इसका जो ऐप का लोगो है वो भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और वो सर स्टार ट्रेल कहाँ पे प्रोसेस करते हैं? हाँ जी, स्टार ट्रेल कौन से ऐप पे, उस पे सॉफ्टवेयर पे सर? स्टार ट्रेल में सॉफ्टवेयर कहाँ से आ गया भाई, तो बताया ना, भूल गए क्या? बताया ना कि दो ही सॉफ्टवेयर चाहिए, फोटोशॉप और दूसरा स्टार स्टैट्स। स्टार स्टैट्स, जी सर। और तीसरा कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ठीक। स्टार ट्रेल इज ए डिफरेंट phenomenon compared to Milky Way. The star trail is created by using number of shots, है ना, 50, 100, 200, 300. Whereas Milky Way is a single shot, सिर्फ एक फ्रेम है, ठीक है। जैसे आप लैंडस्केप खींचते हैं वैसे ये सिंगल फ्रेम है। ओके सर, समझ गए। क्लियर? फारूक जी कोई डाउट? मित्रा जी, लगा सर। कोई डाउट? प्रैक्टिकल करके देखते हैं सर। हाँ जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा, बिना एक बार किए हुए। आप लोग 50 पे नहीं हो, 40 करके कीजिए, 30 सर। करके कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो लाइन बनेगा ना। और कहीं जाने का जगह नहीं मिलेगा तो छत से कीजिए, फोरग्राउंड नहीं हो खाली स्काई कीजिए, ठीक है। लेकिन एक बार करना पड़ेगा तब जाके इसका प्रैक्टिस बनेगा। जी सर। फारूक जी आपके यहाँ मौसम ठीक है अभी? मौसम ठीक नहीं है सर, बादल आ रहा है। हाँ तो ठीक है, जब भी मौका मिलेगा ना, वो तो नेचर के साथ चलना है, नेचर तो अपने हाथ में नहीं है ना। जी तो सर। जब भी स्काई क्लियर मिलेगा, वास्तु रहिएगा, ये तरीके को कहीं पे आप रिकॉर्डिंग को देख के लिख के रख लीजिएगा कि कैसे करना है। पहले तो आप फोटो खींच लीजिए, फिर बाद में हमको कॉल कीजिए, बता देंगे कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोसेसिंग इज नॉट ए बिग थिंग, वो हम लोग कर लेंगे। दीपन विदा क्लियर? हाँ, सब खींचने के बाद ही पता चलेगा। खींचो खींचो, छत पे जाके खींचो, क्योंकि कलकत्ता में तो बहुत लाइट पोल्यूशन है, हाँ तो सर। या तो कलकत्ता से बाहर कहीं जाना पड़ेगा, है ना। फिर भी देख लो, तो देखते हैं, पहले तो छत से मतलब एक बार ट्राई करते हैं, यस, छत से ही जितना ट्राई हो करो। सके। हाँ हाँ, मृदुल वेयर आर यू? मृदुल हाँ सर, यही प्रॉब्लम है क्या? हेलो।
हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ नेट ये सर आवाज, हाँ आप भी ट्राई करना, ठीक है। जी सर, जी सर। थोड़ा सा बोकारो। हाँ सर, नेट का थोड़ा दिक्कत है। हाँ हाँ सर, थोड़ा नेट का दिक्कत है सर। हाँ समझ गए, ठीक है ना। ये सब करना है, एक बार करो आप लोग, बस अधिक नहीं, 50 फ्रेम का बनाओ आप लोग, काफी है, जी सर। ठीक है। ओके देन, लोड कर लिए। ठीक है। ये जो आपका फोटोशॉप का प्रोसेस है उसका भी क्या होगा तो हम फ्लो चार्ट बना के दे देंगे आप लोग, ठीक है, ताकि याद रहेगा। शौकत भैया क्या रखा है मोबाइल में? तो लोड कर लिए। सर वो स्टार ट्रैक्स का लिंक, ওই যে स्टार्ट ड्रेस का दा लिंक आपको हमने एक हफ्ते पहले भेजा है। हाँ ওই सर देख, आप ওই অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নিয়েছে প্লে हमने স্টোর पहले থেকে, दिया ওটাই इसी দেখালো। लिए ताकि आप लोग पहले से डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। हमने 4-5 दिन पहले दिया था, ठीक है। तो आप ग्रुप में आप लोग आके देखा करो, कब किसी को पता नहीं चलता है कि कब क्या हो रहा है, तो थोड़ा ग्रुप में आके देखना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, जी सर। ओके, স্যার गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीबॉडी। হ্যাঁ गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय।